سال کا جو کم سے کم ڈیوٹی کا سفر ہے اس میں اپنے آپ کو صحیح سے انویسٹ کر پائے، اس مائنڈ کو پر کرنے کے لیے، ان کو تیار کرنے کے لیے. ورنہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ وہ آخر تک دوسری طرف جھانکتے رہتے ہیں، اور جب تک وقت نکل جاتا ہے وہ انویسٹ بھی صحیح سے نہیں کر پاتے ہیں. تو ایک بہترین پہل ہے CCIM کی طرف سے، اس میں ان چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے. اور میں بار بار کہتا ہوں ان کو کہ یہ اس بات کے مبارکباد کے مستحق ہیں یہ لوگ، کہ ان کے لیے یہ چیزیں آئی ہیں، ہم لوگ کے دور میں یہ نہیں تھا. تو یہ بچے آپ کے حوالے ہیں سر. میں بچوں سے اپیل کروں گا کہ آپ جلدی سے جوائن کر لیں، جو باقی بچے ہوئے ہیں. اپنے مائکرو فون کو میوٹڈ رکھیں. لاسٹ میں آخر میں جب سر کا لیکچر ختم ہوگا تو انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ بھی چلے گا. سر یہ بچے اب آپ کے حوالے ہیں. سر وسیم احمد صاحب. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر تنویر صاحب، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں خاص طور پر کہ آپ نے شیڈیول میں نام نہ ہونے کے باوجود مجھے موقع دیا. یہ اور بات ہے کہ بہت شارٹ نوٹس پہ مجھے اس کے لیے قدم اٹھانا پڑا، لیکن یہ کہ آپ کا وہ تھا، آپ کی درخواست تھی، تو اسی لیے میں منع نہیں کر سکا، اور تو اس کی وجہ سے میں پاور پوائنٹ نہیں بنا سکا ہوں. البتہ یہ کہ تاریخ کے پہلوؤں کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جس سے اس کی اہمیت اور طب میں اس کا اپلیکیشن دونوں سامنے آئے گا. میری آواز پہنچ رہی ہے آپ سب لوگوں کو؟ یس سر، یس سر. تو آپ سب سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ یہ ٹاپک ہم نے اچانک کیوں چنا. تو اس میں سب سے پہلا جو محرک ہے وہ جب آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس دلی میں بنا 1964 کی بات ہے، تو وہاں پہ ایک پروفیسر کیسوانی ہوا کرتے تھے جو تشریح یعنی اناٹمی کے پروفیسر تھے. انہوں نے اس کو محسوس کرتے ہوئے ہسٹری آف میڈیسن کا شعبہ قائم کیا، اور خود وہ پہلے پروفیسر اور پہلے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ رہے. اس کے علاوہ عثمانیہ میڈیکل کالج میں 1956 میں ڈاکٹر DB سبا راؤ بہت مشہور فیزیولوجسٹ تھے، اور انہوں نے وہاں پہ ہسٹری آف میڈیسن کا شعبہ قائم کیا تھا، جو بعد میں چل کر کے نیشنل سینٹر آف انڈین ہیریٹیج کے نام سے حیدرآباد میں ابھی بھی موجود ہے. بس سوئے اتفاق ہے یہ کہ وہ بیسیکلی ہندوستان کے سارے میڈیسن کے ریسرچ کا وہ تھا، تاریخی ریسرچ، خاص طور پر تاریخی ریسرچ کے لیے، لیکن اب وہ صرف آیوروید کے ساتھ جڑ گیا. تو اور پھر 1964 میں 1967 میں دنیا کے بہت مشہور مورخ ڈاکٹر سائرل ایل گوٹس باقاعدہ خود اس شعبے کے قیام کے لیے مبارکباد دینے یورپ سے آئے تھے. اور آپ اگر تاریخ میں یا گوگل میں سرچ کریں گے تو ڈاکٹر سائرل ایل گوٹس بہت مشہور ریناؤنڈ ہسٹورین گزرے ہیں، اور 1970 میں ان کا انتقال ہوا ہے. 1893 ان کا ڈیٹ آف برتھ ہے. تو اس طرح سے اور اسی سے اور حکیم عبدالحمید صاحب نے اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے جامعہ ہمدرد میں IHMMR کے نام سے ایک بلڈنگ قائم کیا تھا، جس بلڈنگ کا اناگریشن پنڈت نہرو نے 1962 میں کیا تھا، اور مسز اندرا گاندھی نے 1970 میں کیا تھا اس کا افتتاح. پھر اس کے ضمن میں ایک رسالہ بھی نکلتا تھا انگلش زبان میں، جو طب کا بہت ہی موقر اور مستند جنرل کہہ سکتے ہیں. اب شاید نکلنا بند ہو گیا ہے، لیکن پروفیسر رضا اللہ انصاری جب تک اس کے ایڈیٹر تھے تب تک نکلتا تھا. اس سے پہلے حکیم طیب بھی اس کے رہے ایڈیٹر، اور ابھی میرے خیال میں کچھ سالوں میں بند ہوا ہے. یہ تھا اس ٹاپک کے پیچھے وجہ. اچھا، دوسری ایک اور وجہ کہ یورپ کے جتنے میڈیکل کالج ہیں اگر آپ ان کا گوگل میں سرچ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ کوئی ایسا میڈیکل کالج نہیں جہاں تاریخ کا شعبہ نہ ہو. ایون ہم جب شارجہ میں گئے تھے 2014 میں، تو وہاں پہ شارجہ یونیورسٹی میں بھی میڈیکل کالج میں شعبہ تاریخ کا بہت بڑا حصہ پایا. بہرحال یہ وہ سب بیسک چیزیں تھیں جو میں نے عرض کی. اب ہم چلتے ہیں جو مجھے ٹاپک دیا گیا ہے، ایوولوشن آف میڈیسن فرام ڈاؤن ٹو ایجز. تو میڈیسن کے بارے میں سمجھنے سے پہلے ہمیں 3 ٹرم سمجھنا چاہیے کہ واٹ از فلاسفی اینڈ واٹ از تھیولوجی اینڈ واٹ از سائنس اینڈ ہیلتھ. فلاسفی کیا ہے، تھیولوجی کیا ہے، سائنس کیا ہے، اور ہیلتھ کیا ہے. فلاسفی سب سے پہلے جتنا بڑا اسکالر ہوتا ہے اتنا بڑا فلاسفر کہلاتا ہے. فلاسفی کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ بٹوین تھیولوجی اینڈ سائنس، جو تھیولوجی اور سائنس کے درمیان متوسط ہو، جو برج کا کام کرے، اس کو ہم کہتے ہیں فلاسفی. اور تھیولوجی کہتے ہیں
It consists of speculation on matters as to which definite knowledge has so far been unascertainable. मतलब ये है कि जिसपे मुख्तलिफ किस्म के कयासात किया जाए और किसी हतमी नतीजे पे ना पहुंचा जाए, उसको कहते हैं थियोलॉजी। साइंस कहते हैं कि इट अपील्स टू ह्यूमन रीजन rather than to authority, whether that of tradition or that of revelation. मतलब जिसमें इंसानी इस्तिदलालात का इस्तेमाल हो, चाहे वो खुदाई इल्म हो और चाहे वो दुनियावी इल्म हो, दोनों इल्म पे हम उसको जांचें, परखें और समझें, उसको हम साइंस कहते हैं। और हेल्थ की जो डिफिनीशन की है WHO का बहुत मशहूर डिफिनीशन है, complete physical, mental and social well-being, not merely an essence of disease. ये तो WHO कहता है, लेकिन हमारे यहाँ अगर हम जालिनूस की बात करें तो जालिनूस ने कहा कि जिससे मुकम्मल सेहत हासिल हो, इसीलिए हालत सालसा वहां पर वजूद पाया है। और यानी जिस्म के सारे अफाल मुकम्मल तौर पर अंजाम दे तो उसको हम सेहत कहते हैं। और इब्न सीना कहते हैं कि जिससे सालेह या तबई अफाल सादिर हो, इसलिए उनके यहाँ हालत सालसा यानी थर्ड स्टेज की गुंजाइश नहीं है। और इसी तरह से अगर हम उनकी बात करें इब्न रुश्द की, तो कहते हैं कि जिससे सेहत वो हालत है कि जिससे तबई अफाल और उनके इन्फियालात तबई तौर पर सादिर हो, तो उनको कहा जाता है हेल्थ। ये 3 तरह से तारीफ की गई है। अब हम आते हैं जो हमारा मौजू है तारीख। तारीख को की बेसिक चीज़ें हमने बताई। अब हम चलते हैं तारीख कैसे वजूद में आई। दुनिया की 4 तहजीबें सबसे कदीम मानी जाती हैं। जो तहजीब है वो 4 सबसे कदीम है। यूफ्रेट्स एंड टिग्रीस, वो तहजीब जो यूफ्रेट्स और टिग्रीस के दरमियान थी। दूसरी तहजीब जो नाइल रिवर के पास थी, नाइल रिवर के साहिल पर थी। तीसरी तहजीब जो इंडस रिवर यानी दरिया सिंध के पास थी या दरिया सिंध पे वाक़ थी। चौथी तहजीब दरिया अस्वर यानी येलो रिवर की कहलाती है। अब इन 4 तहजीबों में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो कदीम मुअर्रिखीन ने जो लिखा है, खासतौर पर यूरोपियन मुअर्रिखीन ने, उसमें 2 तहजीबों को उन्होंने सबसे कदीम माना है, यूफ्रेट्स एंड टिग्रीस। यानी यूफ्रेट्स और टिग्रीस का एरिया वो है जो मशरिक़ वस्ता यानी शाम, इराक, लीबिया, लबनान, ये वाला एरिया है। और जो नाइल ऑफ रिवर का जो एरिया है वो आपका मिस्र कहलाता है। और दरिया सिंध जो आप जानते हैं इंडो पाक, और दरिया अस्वर जो चाइना, इन 4 में सबसे कदीम तहजीब जो मानी जाती है वो मिस्र की और उसके अलावा बाबली तहजीब। बाबली यानी मेसोपोटामिया वो लैंड है जो दरिया तिग्रिस और फुरास के दरमियान वाक़ था, जिसमें बहुत सारी तहजीबें गुजरी। तकरीबन 4000 से लेकर 5000 साल पहले वहां पर सुमेरी, किल्दानी, आसूरवी जैसी तहजीबें थी जो हवादिस ज़माना के साथ ख़त्म हो गई। और उसमें सुमेरियन तहजीब जो है 1st सेंचुरी AD में उनके टेबलेट्स जिस पे वो लिखते थे और जो लेदर पर वो लिखा करते थे, वो कुछ दरियाफ्त हुई हैं, लेकिन उनकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है और बड़े बड़े स्कॉलर उसको समझ नहीं सके कि उन्होंने क्या लिखा है। ये तकरीबन 4000 से लेकर 5000 के दरमियान ये तहजीब थी। उसके बाद में ये दूसरी तहजीबें आई। उसके बाद में जो बाबली तहजीब है, बाबली तहजीब उनमें सबसे बाद की तहजीब है और ये भी यूफ्रेट्स और टिग्रिस के दरमियान, दरिया यूफ्रेट्स और दरिया टिग्रिस के दरमियान वाक़ है। इस तहजीब बाबली के तहजीब के बारे में ये है कि सबसे पहले बेबीलोनियन और इजिप्शियन, इन्होंने जहां दीगर उलूम पर इनकी नजर थी, वहीं पे तिब पर भी उन्हें कमांड हासिल था। चुनांचे बेबीलोनियन के बारे में ये आता है कि जब उनके यहाँ कोई बीमार हो जाता था तो उस मरीज को शाहराहों पे ले जाकर छोड़ देते थे और हर एक की जिम्मेदारी ये होती थी कि उससे पहले उनकी खैरियत मालूम करें
اور معلوم کرنے کے بعد اس جیسے سائنس سمٹمز اگر اس کو کبھی اس سے اتفاق ہوا ہو یا اس کے خاندان میں یا اس کے رشتہ دار میں یا اس کے اقربا میں، تو وہاں اور اگر وہ ان کا جو تدارک اس نے کیا ہے، جو علاج معالجہ اس میں استعمال کے لیے دوائیں استعمال کی ہے، تو وہ وہاں پہ لکھ کے جائے، اور کوئی بھی کسی پاسربائی کے لیے یہ گنجائش نہیں تھا کہ وہ بغیر مریض کا حالات معلوم کیے ہوئے وہ وہاں سے گزر جائے۔ تو یہ میڈیسین جو ہے آج جو ہم تک ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ہم نے آج دیکھا کہ اور کتابوں میں دستاویز میں محفوظ ہے، کوئی اچانک ہی ایک دن کا کام ہے۔ یہ میرے خیال میں جب سے دنیا بنی اور تب سے صحت اور مرض کا تعلق رہا ہے۔ اگر صحت رہی ہے تو مرض بھی رہا ہے، کیونکہ صحت اخلاق اور مزاج کے بیلنس کا نام ہے، اور اس میں اس کے ڈیویشن یا اس کے غیر اعتدال کا نام مرض ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے چاہے وہ اعتدال اسباب ستہ ضروریہ کی بے اعتدالی سے ہو یا غیر ضروریہ کی وجہ سے، جو بھی اسباب محرک رہے ہوں یا جو بھی محرکات رہے ہوں وہ بیماریوں کا سبب بنے ہیں۔ تو بیماریاں کوئی آج کی دین نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ تھی وہ 4 قدیم تہذیبیں جن کے بارے میں ابھی ہم لوگ باتیں کر رہے تھے، اور اس میں جب ہم ڈاکومنٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جو میرے پاس اب تک ڈیٹا ہے اس میں 4500 BC کا ایک ڈیٹا ہے، جس کے مطابق یہ دنیا کا سب سے اولڈسٹ لٹریچر ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے سے پہلے دنیا کی کوئی رقم کی بھی دستاویز نہیں ہے جس کو لوگوں نے سمجھا ہو، جس میں بہت سارے امراض کا ذکر ہے، اور یہ زمانہ غالباً 3rd ڈائنیسٹی فروہ کا ہے، یعنی فرعون کی جو جنریشن چلتی تھی اس میں تیسری راجونشی تھی، جو فرعون کی تیسری، جو کہ وہ بادشاہت خاندانی بادشاہت تھی، تو اس میں جو تیسرا بادشاہ تھا فرعون کا وہ 3rd ڈائنیسٹی کا ہے، اور وہ ڈاکومنٹس اب تک کا اولڈسٹ ڈاکومنٹ کہلاتا ہے۔ اسی زمانے میں جو سب سے پہلے فزیشین کا جس کا نام دریافت ہوا ہے وہ امہوٹب ہے۔ امہوٹب کے بارے میں امہوٹب اسی زمانے کا ہے 4500 BC۔ امہوٹب جس کو فادر آف ڈیمو گاڈ، جس کو گاڈ کا درجہ حاصل تھا، اور فیلی مصر میں ساؤتھرن مصر میں ایک جگہ ہے فیلی، پہلے فیلی ہوا کرتا تھا جو فیلی کا وہ گاڈ کہلاتا تھا، اب وہ ابھی بھی وہ فیلی شہر ہے لیکن یہ دوسرے نام سے ہے۔ تو یہ دنیا کا سب سے قدیم لٹریچر ہے میڈیکل سائنس کا، اور میڈیکل سائنس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کل جس کو آج آپ یونانی میڈیسن کہتے ہو، یہ میڈیسن ہی سارے میڈیسن کا منبع ہے اور ذریعہ ہے، وہ مصدر ہے۔ میں اس بات آگے آئے گی کہ کیسے سارے علوم کا وہ سرچشمہ ہے اور کیسے منبع۔ سارے علوم چونکہ دنیا میں اس وقت صرف ایک ہی طب تھا، اور وہ وہی تھا جس کے بارے میں ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ڈاکومنٹس ہے 3500 BC کا اور 1500 BC کے درمیان کی، جو ایجپشین اور بیبلونین کی بات ابھی ہم نے کی۔ اس کے بعد میں جو لٹریچر آتا ہے، اب یہ ہے کہ اس زمانے میں پریکٹیشنر کیسے تھے۔ تو اس زمانے میں پریکٹیشنر 3 طرح کے پریکٹیشنر ہوا کرتے تھے۔ ایک پریکٹیشنر وہ تھا جو خالص سحر اور جادو کو بنیاد بنا کر علاج کیا کرتا تھا۔ دوسرا پریکٹیشنر وہ تھا جو سحر، جادو اور دواؤں کو دونوں کو ملا کر کے علاج کرتا تھا، اور تیسرا پریکٹیشنر وہ تھا جو خالص دواؤں پہ علاج کیا کرتا تھا۔ اس میں سب سے کامیاب شخص وہ تھا جو ان بٹوین تھا، یعنی دواؤں کو بھی اور سحر اور جادو کو بھی دونوں کو ملا کر کے علاج کرتا تھا۔ چونکہ علاج اس زمانے میں سحر کا اور اس کے علاوہ لوگوں کے کیا نام ہے اوہام و خرافات کا غلبہ اس قدر تھا کہ یہ چیز پورے طور پر رائج تھی۔ بہرحال تو اس طرح سے 3 قسم کے وہاں پہ اس زمانے میں فزیشین پائے جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں جو تھیوری یعنی سپر نیچرل تھیوری اس زمانے میں رائج تھی، تو سپر نیچرل تھیوری ہی سب سے کامیاب طریقہ علاج تھا، اور لیکن جو معالج سپر نیچرل کے ساتھ دواؤں پر تبحر رکھتے تھے وہ زیادہ کامیاب اس لیے ہوتے تھے کہ اگر ان کی جادو کامیاب نہیں ہوتی تھی تو وہ دواؤں سے جب علاج کر لیتے تھے تو اس سے انہیں اپنے مریض کو کہ یہاں اپنی اہمیت ثابت کرنے میں مدد ملتی تھی۔ اب رہا سوال ایک اور نقطہ یہاں پہ ہے کہ میڈیسین جو جب سے دنیا بنی تبھی سے ہے، اور
जो एक दस्तावेज है ये कि 60,000 साल पहले के कुछ अभी फॉसिल्स मिले हैं, लेकिन वो दस्तावेज जो कले पत्थर है, जो टेबलेट्स के फॉर्म में है, जिन्हें देखा गया लेकिन उन्हें पढ़ समझा नहीं जा सका। जो दस्तावेज समझी गई, कुछ तकरीबन 100 के करीब फॉसिल्स हैं स्कल के फॉर्म में, अभी कुछ अब जल्द ही दरियाफ्त हुआ है। और ये एशिया से, कोस्टल एशिया से ऑस्ट्रेलिया के माबैन दरियाफ्त हुआ है, जिसमें उन फॉसिल्स को देखने के बाद ये पता चलता है कि उनके स्कल पर कुछ ऐसे सुनहरे क्या नाम है, जिनकी सरफेस स्मूथ है और हमवार है और उसमें सुराख है। उन सुराखों को देखने के बाद ये पता चला कि एक तरह का ऑपरेशन किया जाता था उस जमाने में, जिसको ट्रिफिनेशन बोलते थे, TREPHINATION। ट्रिफिनेशन का मतलब ये होता था कि उनके यहाँ हेड इंजरी होती थी, या इसी तरह से एपिलेप्टिक केस होते थे, या इसी तरह से उनके यहाँ और कोई शकीका या आई अमराज के, तो उसमें वो क्या करते थे, प्रेशर रिलीव्स करते थे। तो इस तरह से स्कल में ट्रिफिनेशन की मदद से वो इलाज किया करते थे। बाद में ये तरीका इलाज बहुत दिनों तक ग्रीक में, और फिर ग्रीक के बाद फिर रोमन में, रोमन के बाद फिर पर्शिया में, पर्शिया के बाद फिर अरबों में भी राज रहा ये तरीका इलाज। तो यहाँ पे जो तरीके इलाज थे वो 3 तरह के हुआ, यानी एक तो सुपर नेचुरल, जो जादू और टोना और इन जैसी चीजों पर बुनियाद, दूसरी ह्यूमरल थ्योरी जो बाद में आई, जिसपे हम और आप हमारा और आपका तरीका इलाज है, और तीसरी जर्म थ्योरी जो लुईस पाश्चर के बाद आई, और खासतौर पर जब माइक्रोस्कोप का इजाद हुआ। अब साइंस, मेडिसिन, साइंस एंड आर्ट, ये बहुत जमाने से ये बात चली आ रही है कि ये साइंस एंड आर्ट के बारे में हम यही जानते हैं कि शायद ये हिप्पोक्रेट्स का दिया हुआ है, लेकिन नहीं, माफ कीजिएगा, मैं आपको तारीखी शवाहिद से बात कर रहा हूं। साइंस एंड आर्ट का दर्जा हिप्पोक्रेट्स से सदियों साल पहले मिल चुका था। और अब साइंस और आर्ट कहते किसको है? मुख्तलिफ तजर्बाती डेटा की रोशनी में अमराज के आराज और अलामात की बुनियाद पर ऐसे कुल्लियाती उसूल तश्कील करना जिसके जरिए से अमराज की मुनासिब तदारुक और इलाज अमल में लाया जा सके। सबसे पहले इसकी शुरुआत फरोआ डायनेस्टी के अहद अव्वल में, यानी फर्स्ट फरोआ, यानी पहला फिरौन का जो हुक्मरान था, उसके जमाने में ही इसकी कोशिश हुई थी। लेकिन तिब को साइंस और आर्ट का दर्जा बाद में हुआ, जो बुकरात से सदियों साल पहले है। एक तो ये है। दूसरा, इसका हम आपको सबूत पेश करते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तिब की तालीम खुद मिस्रियों से हासिल की थी, और क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने लिखा है कि तिब की तालीम अहले मिस्र से मूसा अलैहिस्सलाम ने हासिल की थी। ये वाकया खुद इस बात का गम्माज है कि तिब न सिर्फ साइंसी मिजाज रखने में कामयाब हुआ था, बल्कि मिस्र में सदियों तक ये तिब साइंस और आर्ट के दर्जे के असाए सुल्तानी से सरफराज भी थी। तो ये तीसरी चीज यहां पे बात आई, हमने ये बात रखी। और अब जो बात हम रखेंगे वो आते हैं वहां पे, जैसे इमोटिव की बात हो गई, बहुत ही मुख्तसरन हम बयान कर रहे हैं। अब उसके बाद में आते हैं ग्रीक पीरियड में। ग्रीक पीरियड में कुछ बड़े स्कॉलर्स हैं, जैसे पाइथागोरियन का जमाना है, अल्कमियान का जमाना है, एम्पिडोक्लेस का है, हिप्पोक्रेट्स का है, एनेक्सामेंडर का है। पाइथागोरियन का जमाना जो है 532 बीसी का है। पाइथागोरियन बेसिकली एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, और ये हर चीज को नंबर्स में देखता था। इनके यहाँ ये हार्मनी और बैलेंस के कायल थे। तिब में बेसिकली ये फिलोसफर थे। पाइथागोरस, जिसको हम फेसागोरस उर्दू में कहते हैं, पाइथागोरस के शागिर्द हैं एम्पिडोक्लेस, एनेक्सामेंडर, अल्कमियान और एम्पिडोक्लेस। अल्कमियान, एम्पिडोक्लेस, हिप्पोक्रेट्स, ये तकरीबन करीब आसपास के जमाने के। हिप्पोक्रेट्स का जमाना 460 से लेकर के 330 बीसी का है। एम्पिडोक्लेस का जमाना 440 बीसी का है, यानी 440 बीसी का। अल्कमियान का भी जमाना वही है। इन तीनों ने एक स्कूल कायम किया था, तिब्बी स्कूल।
अल-कमियान के तिब्बी स्कूल का नाम था स्कूल ऑफ क्रोटॉन, जो इस वक्त इटली में है। इटली में अगर आप डालें स्कूल ऑफ क्रोटॉन गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात, एम्पेडोक्लस की इनके स्कूल का नाम था स्कूल ऑफ एग्रीजेंटम। ये सिसिली में है, आज भी सिसिली में मौजूद है। उसके आसार आज भी गवाह हैं कि यहाँ पे कोई बड़ा इदारा हुआ करता था तिब्बत का। और तीसरा स्कूल जो है वो हिप्पोक्रेट्स का है, जिसको स्कूल ऑफ कॉस कहते हैं। ये जो है इस प्रेजेंट तुर्की में है। अब वो हम बात कर रहे हैं अल-कमियान की, क्योंकि पैथागोरस की बात हो गई। अल-कमियान जो है बेसिकली इक्वलिटी और ब्लेंडिंग का कायल था। और अल-कमियान ये कहता था कि कोई चीज़ जो कुछ होती है वो पेयर्स में होती है, यानी अगर हरारत है तो बुरूदत होगी, रुतूबत है तो ये बुसत होगा, और अगर कड़वा है तो मीठा होगा, नमकीन है तो बिटर होगा। यानी हर चीज़ जुफ्त में होती है। जब तक ये चीज़ बैलेंस होते हैं तब तक आदमी सेहतमंद होता है, लेकिन जो ही ये इनका प्रीपॉन्डरेंस जो भी गालिब आ जाए इसमें, तो वो डिजीज का मौजिब होती है। और ये इनका कंसेप्ट था। अल-कमियान ने फिर बहुत बड़ा स्कूल बनाया था, जो सबसे पहले गालिबन तारीख के हवाले से अगर कहा जाए तो हेड इंजरी का सबसे पहला ऑपरेशन अल-कमियान ने अपने लैब में किया था। और उसके बाद में एम्पेडोक्लस है। एम्पेडोक्लस आप लोग बखूबी जानते हैं, ये अरकान अरबा का ये मौजूद है, क्योंकि उससे पहले एक रुकन, 2 रुकन, 3 रुकन और अरकान सलासा, अरकान कसीरा, बहुत सारे अरकान थे, बहुत सारे एलिमेंट्स गर्दाने जाते थे। लेकिन एम्पेडोक्लस वो शख्स है, पहला शख्स है जिसने सबसे पहले इस झगड़े को ख़त्म किया, और यही शख्स है जिसने तिब्ब की एक मुनज़्ज़म बुनियाद डाली। इनका एम्पेडोक्लस का ज़माना 440 BC का है। अरकान अरबा का तस्वुर दिया, इसी चीज़ को हिप्पोक्रेट्स ने बुनियाद बना करके ह्यूमरल थ्योरी की बुनियाद दी। हिप्पोक्रेट्स की किताब फी तबीयतुल इंसान, द बुक ऑन नेचर, एंड दूसरी किताब है हिप्पोक्रेट्स की वन मोर बुक, द बुक ऑन एंसेंट मेडिसिन, यानी वो अमराज कदीमा किताब ऑन एंसेंट मेडिसिन। ये दोनों किताबों में उसने इसका सबब लिखा है कि आखिर क्या वजह हुई कि मुझे इससे पहले की थ्योरियों को रिजेक्ट करनी पड़ी और एक नई थ्योरी देनी पड़ी। तो उसमें उनके सारे असबाब पर उसने रोशनी डाली है। और उसके बाद में किताब फी तबीयतुल इंसान में उसने बाकायदा मुदल्लल अंदाज में लिखा है कि थियरी ऑफ ह्यूमर्स की ज़रूरत क्या थी और उसका तिब्ब से क्या ताल्लुक था। तो उसने ये बताया है कि इंसानी मिजाज का जो ताल्लुक है और उसकी सेहत का ताल्लुक कैफियत से है, अखलाक से है, कुव्वा से है। जाहिर बात है, जब अरकान चूंकि अरकान कहते हैं रुकनों को मुख्तलिफ टर्म में हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। रुकनों को हम अरकान को ये वाहिद है, अरकान उसकी जमा है। इसका दूसरा टर्म है अनासिर, उनसुर की जमा अनासिर। और तीसरा इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है उस्तुकुस, यानी उस्तुकुसात। उस्तुकुस वाहिद सिंगुलर और उस्तुकुसात उसकी प्लूरल। अब ये सवाल पैदा होता है कि एक ही चीज के लिए 3 टर्म क्यों इस्तेमाल किए गए। शायद आपके जहन में ये होगा कि तीनों हम मानी है। तीनों हम मानी नहीं है। जब कोई चारों अरकान, जालिनूस की किताब है किताब फिल अनासिर, जिसका हकीम सईदुल रहमान ने उर्दू में तर्जुमा किया है, जिसका अरबी में तर्जुमा किया था ग्रीक से हुनैन बिन इसहाक ने। हुनैन बिन इसहाक का पीरियड है 807 से लेकर के 879 उस जमाने में हुनैन बिन इसहाक ने उसका तर्जुमा किया था। हकीम सईदुल रहमान ने उस किताब को
पर तदवीन और तशरीह की है, वो किताब आप देख सकते हैं। तो अनासिर कहते हैं कि अनासिर जब दो या दो से ज्यादा अंसुर आपस में मिल जाएं, मिलने के बाद एक नई कैफियत बन जाए, और मिलने के बाद एक नई चीज बने, यानी मवालिद सलासा। अब मवालिद सलासा क्या होता है? मवालिद सलासा कहते हैं ट्राई मैटर। ट्राई मैटर हैवानात, नबातात, जमातात। तो दो या दो से ज्यादा अंसुर जब मिलते हैं तो उससे ट्राई मैटर्स यानी मवालिद सलासा का वजूद होता है। और ये मवालिद सलासा ट्राई मैटर कहलाते हैं। ये इनमें हैवानात भी हैं, नबातात भी हैं, जमादात भी हैं। हमारा ताल्लुक उनमें हैवानात से है और खास तौर पर हैवान नातिक से है। ये खुलाई करने वाले को फुर्सत कहाँ मिला था, तो काम में बिजी वाला। जी हेलो हेलो में किसी का जी सर स्लाइड दिखा देते तो अच्छा रहता सर। स्लाइड नहीं हो पाएगा बाबू, स्लाइड नहीं हो पाएगा, बाद में हम स्लाइड दिखा सकते हैं बना के, लेकिन फिर वक्त तो नहीं हो पाएगा। ओके सर, ओके सर ठीक है। तो मैं धीरे धीरे बोलूं? सर धीरे धीरे बोलिए सर। समझ में आ रही बात है या तो फिर मैं रिवाइज कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं। जी थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, समझ में आ रहा है। सब आ रहा है ना? सब क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है, थोड़ा धीरे धीरे बोलिएगा सर। स्पीड थोड़ा स्लो कर दीजिए सर, बाकी सब अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा, तो जब दो या दो से ज्यादा उनसुर मिलते हैं तो उनके मिलने की वजह से जो एक नया मुरक्कब पैदा होता है, वो मुरक्कब मवालिद सलासा कहलाता है। मवालिद सलासा ट्राई मैटर कहलाते हैं। ट्राई मैटर में हैवानात आते हैं, नबातात आते हैं, जमादात आते हैं। हैवानात में से जो हम भी उसी में शामिल हैं, और हम स्पेशल कैटेगरी है क्योंकि हमारा ताल्लुक नफ्स भी से जुड़ा हुआ है, और नफ्स से जब जुड़ता है तो नफ्स और अकल, तो वो कहलाती है हैवान नातिक, यानी इंटेलेक्ट, फैकल्टी ऑफ इंटेलेक्ट उसमें शामिल होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चीजें मिलती क्यों हैं? ये जो अंसुर है जिसको अभी हमने बताया कि जब ये मिलती हैं, मिलने के बाद जो मादा पैदा होता है, जो एक चीज वजूद पाई है, वो वजूद कहलाती है एक प्रोडक्ट या होयुला। होयुला इंग्लिश में कहलाता है अमार्फस सब्सटेंस, यानी जिसकी कोई अपनी शक्ल ना हो, मादा। और जब भी मादा मिलेगा तो मादे में से क्या है? आग, हवा, पानी, ये है बेसिक हमारे प्राइमरी मैटर्स हैं। ये प्राइमरी मैटर्स ये मवालिद सलासा के बनाने में इनका बेसिक रोल है। ठीक है, जब इनका बेसिक रोल है तो इनकी वजह से ये जब मिलते हैं तो मिलने की वजह से कहलाते हैं उनसुर। लेकिन जब ये मिल के किसी और इनके अंदर जो मिलने वाला मादा, जब उसको हम छूते हैं और महसूस करते हैं तो वो कहलाता है रुक्न। और जब यही मादा अपना वक्त मुकम्मल करने के बाद दुनिया से चला जाता है और तहलील हो जाता है, तहलील मतलब डिसोल्यूट हो जाता है, तो वो कहलाता है उस्तुकुस। यानी इसका मतलब हो गया कि जैसे हम हैं या आप हैं, जब हमें एक कंटेक्ट लाइव कुदरत ने दिया है, जब हमारी तकवीन हुई थी तो तकवीन के वक्त ये उनसुर था, और जब प्रोडक्ट निकल के आया, एक शक्ल निकल के आई, शक्ल यानी फॉर्म या होयुला, तो उस होयुला के अंदर जो मादे हैं वो मादे कहलाए रुक्न। और जब वो डिसोल्यूट हो गए, यानी जब हमारा मिजाज, कभी जब हम पैदा हुए थे तो हमारा मिजाज हार रतब था, जब हम इंतकाल कर रहे हैं तो हमारा मिजाज बारिद याबिस हो गया। तो उस वक्त जो है जब हमारी रूह निकल गई तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ क्या बचे? जो प्रोडक्ट निकल के बचे हैं, चाहे वो सयाल के फॉर्म में हो यानी बुखारात, और चाहे बुखारात के फॉर्म में हो, चाहे वो अज्जाए अर्जियत के फॉर्म में हो, चाहे अज्जाए हवाइयत के फॉर्म में हो, और चाहे अज्जाए माहियत के फॉर्म में हो, और चाहे अज्जाए नारियत के फॉर्म में, वो सब के सब कहलाते हैं उस्तुकुस्सा। ये है बेसिक डिफरेंस। इसको इंग्लिश में पैरेलल बहुत सारे टर्म्स दिए हैं गुरुनर ने। एलिमेंट्स का लफ्ज भी उन्होंने इस्तेमाल किया है, प्राइमोर्डियल सब्सटेंस का लफ्ज इस्तेमाल किया है, उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल का लफ्ज इस्तेमाल किया है, उन्होंने प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट का लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो और ये चार है। अच्छा, ये सवाल ये मिलते कैसे हैं? इन पे डॉगलस ने लिखा है, एक किताब है वेस्टर्न फिलॉसफी। वेस्टर्न फिलॉसफी
के राइटर हैं बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल बहुत मारूफ स्कॉलर है, गूगल में आप डाल के देखेंगे। 1945 में किताब लिखी गई थी और 1950 में इस किताब पर उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। सिर्फ एक किताब उन्होंने लिखी थी जिसका नाम है वेस्टर्न फिलॉसफी, और वेस्टर्न फिलॉसफी जो है बर्ट्रैंड रसल की है। उसी किताब से मैं आपको हवाला दे रहा हूँ। तो उस किताब के मुताबिक ये जो उन्सुर हैं ये मिलते हैं दो तरह से, लव एंड स्ट्राइव, यानी मोहब्बत और नफरत। लव से कोई चीज मिलती है और नफरत से कोई चीज जुदा हो जाती है। लव से मिलने के बाद एक कंपाउंड बनता है, लेकिन ये जान लीजिए कि कंपाउंड कभी परमानेंट नहीं होता। उन्सुर या कैफिया या अनासिर अरबा ये जरूर परमानेंट है, लेकिन उनसे बने हुए कंपाउंड कभी परमानेंट नहीं होते। उनको आज नहीं तो कल डिसोल्यूट हो जाना है, और वो चाहे उसके पीछे स्ट्राइव कार फरमा हो या जो भी वजह हो, लेकिन वो कल के दिन तहलील हो जाएंगे। तहलील मतलब डिसोल्यूट हो जाएंगे। अब यहाँ एक नुक्ता है, इस पे गौर कीजिए। यही आपकी तिब दूसरों से मुमताज क्यों है, उस नुक्ते पे गौर कीजिए जो मैं जहां ले जाना चाहता हूं। हमारे यहाँ अरकान 4 है, कैफियत 4 है, अखलाक 4 है। अखलाक 4 है, नहीं सौदा सफरा बलगम दम। मिजाज 4 है, सौदावी मिजाज, सफरावी मिजाज, बलगमी मिजाज और सौदावी मिजाज। सीजन 4 है, ठंडक भी है, गर्मी भी है, बहारा है, खिजा। कोआ भी 4 है, कोते हैवानिया, कोते नफसानिया, कोते तनासुलिया और कोते तबिया। और आज़ाए रईसा भी, इनके मरकज जो इन आर्गन के मरकज हैं, सेंटर है, वो भी 4 है, यानी दिमाग, जिगर, कल्ब, उनसे। और स्टेजेस ऑफ लाइफ भी 4 है, सिन्न नमू, सिन्न शबाब, सिन्न कुहूलत, सिन्न शैखूकत। इसी तरह से डिजीज के स्टेजेस भी 4 हैं। मर्ज नमू, मर्ज तजायद, मर्ज वकूफ और मंजिल इनहतात। 4 स्टेज, यानी आंसेट स्टेज, इंक्रीमेंटल स्टेज और जेनिथ स्टेज और डिसोल्यूट स्टेज, यानी डिसोल्यूशन कह सकते हैं, तहलील, डिसोल्यूशन, स्टेज ऑफ डिसोल्यूशन, ये भी 4 है। इसके अलावा ड्रग्स की कैटेगरी भी 4 है, यानी जिसको हम दर्जात अदविया भी कहते हैं। दर्जा अव्वल, दर्जे दोम, दर्जे सोम, दर्जे चाहरों। को दुनिया की कोई भी मेडिसिन आप देख लीजिए, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो आयुर्वेदा हो, उनके यहाँ इतना बैलेंस और इतना मौजू तनासब शायद ही मिले। अब आ जाइए आयुर्वेदा पर, उनके यहाँ अरकान 3 है, अरकान 5 है, और अखलाक कितने हैं? 3 हैं। मिजाज भी 3 है, तबीयत का कंसेप्ट नहीं है, हरारत गरीदिया का कंसेप्ट नहीं है। उसके अलावा दवाओं को डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस उनके यहाँ अलग है, हमारे यहाँ इंसानी जान का मद्देनजर रखते हुए अतिब्बा ने कितना लिहाज किया है कि आप हैरत करेंगे कि खानिकुल कल्ब एक दवा है इजरा की, हमारे यहाँ उसको हम डिटॉक्सिफाई करते हैं, किसमें? दूध में भिगोते। उनके यहाँ किसमें भिगोते हैं? गाय के पेशाब में। यह है फर्क। चाइनीज मेडिसिन का मामला यही है। चाइनीज मेडिसिन के अंदर भी अनासिर 5 है, कैफियत 3 है। तो कोई भी मौजू सिस्टम ऐसा नहीं है जो ट्रेडिशनल सिस्टम कहलाते हैं, जितना बैलेंस और जितना रीजनेबल यूनानी मेडिसिन है, उतना शायद ही कोई मेडिसिन हो। आप इस पे गौर कीजिएगा। उसकी वजह है कि दुनिया की सारी तहजीबों को इसने अमलगमेट कर लिया।
जब से इंसान बना, चाहे मिस्री तहजीब हो, बेबीलोनियन हो, सुमेरियन हो, किल्दानी हो, आशूरी हो, मेसोपोटामिया की हो, ग्रीक का हो, रोमन का हो, पर्शिया का हो, अरब का हो, मुगलों का ज़माना हो, और आज और हिंदुस्तानी तहजीब, सब का सब उसने अमलगमेट किया। इसीलिए मोर साइंटिफिक एंड मोर क्या कहते हैं, मोर जो है इस्तिदलाल बेस पे है। मतलब इसके किसी नुक्ते पे आप एतराज आपका पैदा हो नहीं सकता। आप जो भी अतिबा ने जो भी बात कही है उसका जबरदस्त दलील दी है। और मैं अभी एक इसी ज़िम्मन में बात अर्ज कर दूं, हालांकि वो मौजू नहीं है, और कोई भी नुक्ता अतिबा ने बगैर किसी हवाले के और बगैर किसी रेफरेंस के उन्होंने और बगैर किसी मुशाहिदे के जिक्र नहीं किया है। एक मैं आपको बता, और ये भी सोच लीजिए कि तिब में रिसर्च तहकीक आज से नहीं, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे आर्ट्स एंड साइंस की बात, तो आज से नहीं, ये सिंस वेरी बिगिनिंग था। तो उसी तरह से रिसर्च तहकीक हमारे यहाँ वेरी बिगिनिंग से था, चाहे वो बुकरात का अमल तायर का मामला हो हुक्ना के अमल में, और चाहे वो जालिनूस के ज़माने में। जालिनूस के बारे में लिखा है एक किताब में कि वो तिरियाके फारूक की तासीर और उसकी दुरुस्तगी को पता करने के लिए करता ये था कि वो जो मुर्ग होते थे, जंगली मुर्ग, उनको पकड़ करके उन्हें तिरियाके फारूक खिलाता था, और खिलाने के बाद उन्हें हामा एक किस्म का उल्लू है, उन्हें छोड़ देता था और हामा से डसवाता था। फिर ये देखता था कि तिरियाके फारूक का इफेक्ट कितना है। अगर हामा के डसने से मुर्ग मर जाता तो इसका मतलब तिरियाके फारूक सही से तैयार नहीं हुआ है और ये ओरिजिनल नहीं है, यानी इसकी एफिकेसी डाउट में है। और तो कभी कभार ये करता था कि पहले वो हामा से डसवाता था, डसवाने के बाद उसको तिरियाके फारूक देता था खाने के लिए, और देखता था कि इसकी एफिकेसी कैसी आ रही है। तो ऐसा नहीं कि तिब का कोई नुक्ता बगैर रिसर्च, तहकीक, तमहीस, एक्सप्लोरेशन के बेस पे से खाली रहा हो, ऐसा कभी नहीं रहा है। अब कैफियत की बात हम कर लें थोड़ा सा। चूंकि कैफियत को समझना ज़रूरी है, और जाहिर बात है हमारा ताल्लुक बुनियादी नुक्ता तिब है। तो अभी बात हो रही थी कि कैफियत जो हमने जिक्र किया कि बेसिकली कैफियत 4 है। वो प्राइमरी कैफियत कहलाते हैं। हरारत है, बुरूदत है, रतूबत है, यबूसत है। इनको हम उम्महातुल कैफियत भी कहते हैं। हरारत का काम है खिफ़त यानी हल्कापन, लाइटनेस, लताफत यानी सब्टिलनेस, कहीं भी पेनिट्रेट हो जाए, गर्मी फैलाना, हीट, गर्मी देना, एक्सपेंशन, फैलने की सलाहियत होती है इसके अंदर, फैलना, तखलखुल, तखलखुल कहते हैं, तखलखुल ते खे लाम खे लाम। तखलखुल का मतलब होता है कि जिस्म के हजम का किसी मादा के इजाफा के बगैर बढ़ जाए। यानी कोई जिस्म है, कोई बॉडी है, और उसमें किसी मैटर को इजाफा किए हुए, कोई मैटर को इजाफा किए हुए उसका हजम बढ़ जाए। हजम मतलब वलूम, यानी किसी जिस्म का वलूम बगैर मैटर के इजाफा किए हुए बढ़ जाए तो उसको कहते हैं तखलखुल। घुलाना, आग घुलाती है, पिघलाना, मेल्टिंग, आग पिघलाती है, तलफ करना, आग किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देती है, बुखार बनाना, इवेपोरेट कराती है, इवेपोरेशन करती है। अब दूसरी कैफियत बुरूदत है। बुरूदत कहते हैं सिकल, सिकल मतलब हैवीनेस, तकासुफ, तकासुफ ते काफ अलिफ से फे। तकासुफ का मतलब होता है कि कोई चीज अपने हजम से, अपने साइज में
कम हो जाए बगैर किसी मादा को कम किए हुए। यानी इसका मतलब यह हुआ कि कोई जिस्म है, उसका एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम होगा, जाहिर सी बात है, और वो वॉल्यूम अपने साइज में कम हो जाए बगैर किसी मादा उसके अंदर से मादा को निकाले हुए, तो इसको कहते हैं तकासुर। और उसके अलावा बरूदत का काम, तीसरा काम है ठंडा करना, फ्रीज करना, मुंजमद करना, अजसाम को समेटना। कोई फैली हुई चीज है उसको समेट करके छोटे में कर दे। जैसे ठंडक में क्या होता है, ठंडक में होता है कि वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन क्या है, ये बुरूदत की वजह से है। रुतूबत, ये दोनों कैफियत फाइला थी। अब कैफियत मुनफैला की बात करते हैं, यानी वो एक्टिव वो थे क्वालिटीज, और ये है पैसिव क्वालिटीज, रुतूबत और यबूसत। रुतूबत यबूसत की खूबी ये होती है कि ये शक्लों को कबूल करते हैं। मतलब कोई भी शक्ल दे दो, इजीली कबूल कर लेते हैं, आसानी से जुड़ भी जाते हैं, आसानी से टूट भी जाते हैं, और रकीक भी हो जाए। किसी चीज को कोई गलीज मादा है, कंसंट्रेटेड है, हम उसको डायल्यूट कर सकते हैं। इसी तरह से यबूसत, एक चौथा टर्म है यबूसत, ये भी कैफियत मुनफैला का एक पार्ट। ये शक्लों को बमुश्किल कबूल करते हैं, बदुश्वारी जुदा होती है, और जुदा होने के बाद बमुश्किल छोड़ती है। किसी चीज को ये सख्त कर देती है और ये मुस्तहकम बनाती किसी चीज को। इसकी मिसाल मैं आपको बताऊं कि जैसे बुढ़ापे में एक बीमारी होती है CBD, कॉर्टिको बेसल गैंग्लियनिक डिजनरेशन। कॉर्टिको बेसल गैंग्लियनिक डिजनरेशन बेसिकली क्या है, ये यबूसत दिमाग है, यानी ड्राइनेस ऑफ ब्रेन। मॉडर्न मेडिसिन में हम इसको कहते हैं एट्रोफी। आप किसी भी मॉडर्न डॉक्टर के पास जाओगे, न्यूरोफिजिशियन के पास, तो क्या कहेगा कि बाबा जी आपका दिमाग जो है सिकुड़ रहा है, आपका दिमाग सिकुड़ रहा है, मतलब श्रिंक कर रहा है। तो और उसी को बहुत सारी बीमारियां कहते हैं। अल्जाइमर डिजीज है, पार्किंसन डिजीज है। तो ये जब अपने स्ट्रक्चर से साइज इनका छोटा होने लगे तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो चैनल्स हैं, जो सिनॉप्सिस होना है, जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर अपने पर्टिकुलर जंक्शन में सिनॉप्स नहीं कर पाते, उनकी सिनॉप्सिस नहीं हो पाती। और जब सिनॉप्सिस नहीं होती है तो क्या होता है कि ट्रिमर और डिमेंशिया की शिकायत होती है, वो कहलाती है। हमारे यहाँ तिब्बा ने इसको क्या कहा है, यबूसत दिमाग। यबूसत दिमाग कह करके उन्होंने सारी बात आपके सामने क्लियर कर दी है। इसके बाद में इन कैफियत, ये जो प्राइमरी कैफियतें हैं, इनको जो है सेकेंडरी कैफियत, इनसे सेकेंडरी कैफियतें भी बनती है। जैसे कैफियत मलमूसा, यानी ऐसी कैफियत जो टच से पता चला। कैफियत मकसूरा, वो फैकल्टी ऑफ विजन। कैफियत मशमूमा, यानी कैफियत मशमूमा फैकल्टी ऑफ टेस्ट। मजूका फैकल्टी ऑफ टेस्ट, और कैफियत मशमूमा फैकल्टी ऑफ जो है लैक्रिमेशन, यानी सूंघना, इनहेलेशन, फैकल्टी ऑफ इनहेलेशन। तो ये सेकेंडरी कैफियत है। ये सब वो कैफियत है। ये हाँ, अब यहाँ पे दो चीज है कि जो किसी चीज का उनसुर का जो अपना फंक्शन है, वो उसके अपने स्पेसिफिक
स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का मतलब सूरत नविया, सूरत नविया, स्वाद वाव रे ते, नू वाव ऐन ये है। सूरत नविया का मतलब होता है कि वो हर उनसुर का अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, उस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की मदद से वो उसके फंक्शन अंजाम देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हरारत जो है जिस्म में जब ये मिलते हैं, किसी मरकब में मिलते हैं, मिलने के बाद और अगर उनकी अपनी सूरत नविया बाकी रहती है तो वो सूरत नविया से ही उनके अपने अफ़ाल अंजाम पाते हैं। अगर उनके सूरत नविया यानी उनके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में खराबी पैदा हो जाए तो उनके अफ़ाल जो जिस काम के लिए वदीयत किए गए हैं वो काम सादिर नहीं हो सकेगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी के अंदर हरारत का गलबा है, इम्तिजाज के बाद चारों उन्सुर के मिलने के बाद जो मिजाज पैदा हुआ है वो मिजाज दो तरह से होता है, मिजाज मोतदिल और दूसरा मिजाज गैर मोतदिल। मिजाज मोतदिल को हम मॉडरेट टेम्परामेंट कहते हैं, मिजाज गैर मोतदिल को हम इनइक्विबल टेम्परामेंट कहते हैं। अब इनइक्विबल टेम्परामेंट जो है ये 8 टाइप के होते हैं, 8 किस्म के होते हैं। तो उसमें 4 सिंगुलर कैफियत में होते हैं और 4 प्लूरल कैफियत में होते हैं। सिंगुलर कैफियत का मतलब किसी में हरारत ज़्यादा होगी, किसी में रुतूबत ज़्यादा होगी, किसी में बुरूदत ज़्यादा होगी, किसी में यबूसत ज़्यादा होगी और किसी में रुतूबत ज़्यादा होगी। और प्लूरल में यानी एक कैफियत फ़ाइला और एक कैफियत मुनफ़इला, हरारत रुतूबत, हरारत यबूसत, बुरूदत रुतूबत, बुरूदत यबूसत। ये तो हो गए इनइक्विबल टेम्परामेंट। लेकिन ये इनइक्विबल टेम्परामेंट का मतलब ये नहीं होता कि ये डिजीज कंडीशन है। इसकी वजह यह है कि एक रेंज में होते हैं। जब तक ये अपने रेंज में होते हैं तब तक ये सेहत की जानिब या सेहत के जामिन होते हैं या सेहत की जमानत होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई हार मिजाज का होता है, कोई बारिद मिजाज का होता है, यानी इसके अंदर हरारत ज़्यादा होती है, किसी के अंदर बुरूजत ज़्यादा होती है, किसी के अंदर खुश्की ज़्यादा होती है और किसी के अंदर रुतूबत ज़्यादा होती है। इंसानी कैटेगरी है। अभी शायद अभी कुछ दिनों पहले एक वर्क शाये हुआ था इंडियन एक्सप्रेस में, 28 सितंबर का इंडियन एक्सप्रेस है, 28 सितंबर 2018 और ये एडिशन है हैदराबाद एडिशन, जिसमें एक काम हुआ था नेचर में। ये काम 4 मिलियन पर एक काम किया गया और वो पेपर नेचर में छपा था। दुनिया का बेस्ट मैगजीन जो कहलाता है वो न्यूयॉर्क से निकलता है, नेचर। द नेचर में वो पेपर वो केस स्टडी छपी थी 4 मिलियन पर। तो उसमें ये बताया गया था कि जो दुनिया के लोग हैं अगर उनकी बड़े लेवल पे क्लासिफाई किया जाए तो 4 ग्रुप में ही बांटे जा सकते हैं। यानी हमारे अतिब्बा ने जो बातें कही थी आज जो हरफ बहरफ साबित हो रही हैं, बस कमी यह है कि हम उसको दूसरी दुनिया के सामने हम प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। चुनांचे मैंने खुद वो अखबार पढ़ी थी और उसमें उन्होंने 4 दे क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। और ये हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि हमारा ये जो है अगर मोटे मोटे देखा जाए तो 4 ही कैटेगरी में इंसान बढ़ता है। इसीलिए ये देखा गया है कि जो सफरावी मिजाज का होता है यानी हरारत यबूसत, वो बाद में जाकर के बहुत तेजी से यबूसत की तरफ चला जाता है और ऐसे लोगों के अंदर दिमागी अमराज की टेंडेंसी बहुत होती है। तो अब यहाँ ये चूंकि मैंने ये बात ज़िम्रन इसलिए अर्ज की क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कैफियत का रोल क्या है। तो ये कैफियतें न सिर्फ इंसानी मिजाज से ताल्लुक़ रखती हैं बल्कि इस्तेमाल होने की ग़िज़ाओं से ताल्लुक़ रखती हैं और तरीक़े इलाज में जो मुश्तमिल अदवियाँ हैं उससे ताल्लुक़ रखती हैं और जो हमारे यहाँ दूसरे तदाबीर हैं यानी प्रोसीजर्स हैं उनको भी कैफियत को मद्देनज़र रखते हुए किया जाता है। यानी हम्माम में कितनी देर बैठना है, कितना पसीना लाना है, हार या इस चैम्बर में कितने देर तक रखना है, ये उसके निकलने वाले स्वेटिंग और निकलने वाले मतलब रुतूबत से पता करते हैं। अच्छा, एक बात ये हुई कि यानी जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें उसके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर यानी सूरत नविया के मुताबिक होते हैं। लेकिन अगर वो जब
अनासिर किसी चीज को मिल करके जब कोई मुरक्कब बनाते हैं तो जो मुरक्कब बनता है वो मुरक्कब स्पेसिफिक सूरत नविया यानी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के ताबे नहीं होता, बल्कि उन कैफियत के ताबे होता है जो मुख्तलिफ किस्म के आज़ा के मिलने से एक मुरक्कब बना है, चाहे वो इंसानी मुरक्कब हो, चाहे वो हैवानी मुरक्कब हो, और चाहे किसी दवा का मुरक्कब हो। यानी एक दवा के अंदर मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स होंगे, उनका अपना मिजाज होगा, उनकी अपनी तासीर होगी, उन तासीर के और एक इसी तरह से एक कंपाउंड मुरक्कब है, उस कंपाउंड में आपने 10 दवाएं शामिल की हैं, तो 10 दवाओं के अंदर जो उनका अपना मिजाज है यानी कैफियत, यानी उसका एक्शन, उस दवा का अमल उन कैफियत के ताबे है, ना कि सूरत नविया के ताबे है। इसलिए कि कैफियत के ताबे उसके अफ़ाल हैं, और कैफियत की वजह से जब अफ़ाल सादिर होंगे, अफ़ाल क्यों सादिर होंगे? अफ़ाल कुव्वत को रिलीज करेंगे और कुव्वत अफ़ाल को सादिर करेंगे, और अफ़ाल से हमें यह पता चलेगा कि कौन सी कुव्वत इसमें शामिल है और कौन सी, और अफ़ाल के खलल से यह पता चलेगा किस कुव्वत में खलल है। मिसाल के तौर पर हज़्म मेदी की मिसाल ले लें, ज़ोफ़े मेदी के बारे में अतिबा ने लिखा है कि अगर जो है रतूबत की वजह से हज़्म मेदा खराब हो तो हमें अंजदान का इस्तेमाल करना चाहिए। अंजदान का मिजाज क्या है? हार याबिस है। अंजदान कहते हैं हींग को, हिलतीत को। तो यहाँ पे अतिबा ने कैफियत पे जोर दिया, क्योंकि अब पूरा फंक्शन हमें कहाँ से पता चला? हमें कैसे पता चला कि ज़ोफ़े मेदी है? हमें कैसे पता चला कि वहाँ पे सूए हज़्म लाहिक है? तो सूए हज़्म में हमें बताया कि यहाँ पे जो मैदा के अंदर मौजूद कुव्वत है उसके अंदर खराबी हुई, और कुव्वत के जरिए हमें पता चला कि पर्टिकुलर कुव्वत कैसे पता चला कि हमें जो उसके अवारिजात है यानी साइंस सिम्टम्स, मतलब जो साइंस सिम्टम्स जाहिर हो रहे हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे रतूबत का गलबा है। तो रतूबत का गलबा वो हमें कैसे दूर करेंगे? वो हम कैफियत से दूर करेंगे, उस कैफियत के लिए यानी बारिद याबिस कैफियत। तो इस तरह से यहाँ बताने का मकसद यह है कि कंपाउंड हमेशा कैफियत के ताबे होता है और अनासिर हमेशा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर यानी सूरत नविया के ताबे होता है। ठीक है, तो ये रही बात। अब हम चूंकि वहाँ कैफियत की बातें थी, इसलिए कैफियत की बातें हमने यहाँ पे अर्ज कर दी ताकि आपको, और हालांकि हमारा मौजू है इवोल्यूशन ऑफ मेडिसिन। उसके बाद में हम ग्रीक पे आते हैं। फिर हिपोक्रेट्स ने इसको एक बाकायदा जो मुख्तलिफ किस्म के अवहाम थे उसको निकाल बाहर किया, और इसको जो है तिब हर एक के लिए आम किया। लेकिन ये भी जान लीजिए कि अगर जालिनूस ना होता तो हिपोक्रेट्स कभी जिंदा ना होता। इसीलिए हिपोक्रेट्स को जो जिंदगी दी है वो जालिनूस ने दी है। जालिनूस का जो ज़माना है 129 से 201, जालिनूस ने बहुत सारी किताबें लिखी थी, और जालिनूस की तकरीबन 16 लिखी हुई किताबें मदरसा इस्कंदरिया यानी स्कूल ऑफ अलेक्जेंडरिया जिसको कहते हैं, जहाँ पे दुनिया का सबसे पहला मुनज़्ज़म तिब्बी स्कूल था, जिसमें 16 किताबें उसकी दाखिले निसाब थी, और किताब फिल मिजाज, किताब फिल उस्तुक़ुस्सार, किताब फिल अनासिर, ये सब उसी की किताब है। और किताब फिल कोवा भी है उसकी, उसमें दाखिले निसाब थी। उसमें अल-कुव्वतुत तबिया भी एक किताब है उसकी, जिसको नेचुरल फैकल्टी कहते हैं। इसका ट्रांसलेशन दुनिया की मुख्तलिफ ज़ुबानों में हो चुका है, और इसका अरबी तर्जुमा सबसे पहले हुनैन बिन इसहाक़ ने किया था, और हुनैन बिन इसहाक़ ने अरबी में तर्जुमा किया था। बाद में इसका लैटिन, फ्रेंच, जापान और दुनिया के मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में हुआ। इस पे कमेंट्री 1953 में ऑक्सफोर्ड के किसी प्रोफेसर ने किया था। 1953 में इस पे कमेंट्री शाये हुई थी, और उसका उर्दू तर्जुमा नाचीज़ ने किया है। इंशाअल्लाह जल्द आप लोगों को मिलेगी वो किताब। तो जालिनूस के बाद अगर हम कहें तो जालिनूस को इसीलिए कहा जाता है, एक मकूला है कि तिब मुर्दा था, जालिनूस ने जिंदा कर दिया। बिखरा था, राजी ने एक जंजीर में पिरो दिया, और नामुकम्मल था, इब्न सीना ने इसको मुकम्मल कर दिया।
इसी लिए जालिनूस के बगैर तिब का वजूद नहीं है। फिर जालिनूस के बाद जो पीरियड आता है, जालिनूस के बाद जो ज़माना आता है वो बहुत सारे फिलासफर्स हैं। सेल्सस है उसमें एक नाम है, हालांकि उससे पहले है सेल्सस। सेल्सस का पीरियड तकरीबन 25 AD का है। और सेल्सस बेसिकली रोमन फिलासफर था। आप जो एक किताब है क्या नाम, हर्षमोहन की पैथोलॉजी। हर्षमोहन की पैथोलॉजी में जो कार्डिनल साइन बयान किए गए हैं उसमें एक है लॉस ऑफ फंक्शन। लॉस ऑफ फंक्शन बेसिकली लिखा है कि विल्को ने बयान किया है 17th सेंचुरी AD में। तो मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बात बता दूं कि माफ कीजिएगा, ये विल्को का नहीं दिया हुआ है। जालिनूस ने अपनी किताब फिल आज़ाइल आलिमा में उसने खुद जिक्र किया है लॉस ऑफ फंक्शन। ये और बात है कि वो चीज़ हमने दुनिया के सामने प्रेजेंट नहीं किया और उस लॉस ऑफ फंक्शन को जो है विल्को के नाम से मासूम कर दिया गया, जबकि जालिनूस ने वो लॉस ऑफ फंक्शन किताब फिल आज़ाइल आलिमा में बहुत पहले ही जिक्र किया है। 4 साइन जो है वो तो सेल्सस ने बयान किया था, लेकिन जो 5वां साइन था वो जालिनूस ने किताब फिल आज़ाइल आलिमा में लिखा है। और ये आपको मिल जाएगा हर्षमोहन की किताब जो JP वाले ने छापा है, और इन्फ्लेमेशन चैप्टर में जैसे इन्फ्लेमेशन खोलेंगे वहां पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं रोम का पीरियड। तो फिर उसके बाद रोम के बाद फिर पर्शिया आ जाता है। पर्शिया में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, उसमें कुछ तिब्बी स्कूल थे और 2-3 तिब्बी स्कूल का जिक्र मिलता है। और फिर उसके बाद में जो सही काम हुआ है वो फिर अरबों के ज़माने में हुआ है। अरबों ने इसको दुनिया के सारे कलेक्शंस दुनिया के मुख्तलिफ लाइब्रेरियों से हासिल किए, और न सिर्फ हासिल किया बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ट्रांसलेटर से इकट्ठा किए, चाहे वो जो बख्तेशु ख़ानदान हो, चाहे जॉर्जिस का ख़ानदान हो, और चाहे वो लूका का ख़ानदान हो। ये ट्रांसलेशन में माहिर थे। इन्होंने दुनिया की इटालवी से लेकर के और ग्रीक से लेकर के तमाम ज़ुबानों का, और शामी ज़ुबान, हिंदुस्तान की संस्कृत ज़ुबान, तमाम ज़ुबानों का इन्होंने ट्रांसलेशन किया। और ट्रांसलेशन के बाद बाकायदा जो है इसको एक मुनज़्ज़म शक्ल दे दी तिब्बती, और उसमें बहुत सारे नाम हैं जिसमें अबू सहेल मसीही हैं। अबू सहेल मसीही जो उनके उस्ताद थे इब्न सीना के, और कामिल सना जो है किताब अल-मुल्की, जिनकी कामिल सना जो मजूसी की किताब है किताब अल-मुल्की के नाम से भी मौसूफ है। बहुत अहम किताब है, बहुत कीमती किताब है, इसको पढ़ना चाहिए। ये ऐसी किताब है कि जिसमें करेनियल नर्व के बारे में, जो करेनियल नर्व आप आजकल पढ़ रहे होंगे, आप करेनियल नर्व के बारे में बाकायदा तौर पर जिक्र है किताब अल-मुल्की में। और उसके अलावा नर्वस सिस्टम को जितना अच्छे अंदाज से इस राइटर ने बयान किया शायद ही किसी तबीब ने बयान किया होगा। एक बात मैं और अर्ज कर दूं यहाँ पे ज़िम्नन कि शायद हम लोग ये समझते हैं कि हमारा जो हमारी लिमिटेशंस वो सिर्फ नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार है। नहीं, हमारे पास जो हमारा थर्स्ट एरिया है, जो मजबूत एरिया है, वो नर्वस सिस्टम है। और उसके अलावा जो हमारा दूसरा एरिया है वो हम्मियात का है। आप देख लीजिए, जालिनूस ने खुद हुम्मा पर किताब लिखी थी, किताब फिल हुम्मियात, अ बुक ऑन फीवर। इसी तरह से नर्वस सिस्टम पर तो तमाम ही अतिब्बा ने बाकायदा पूरी शरह बस के साथ पूरा चैप्टर बांधा है, चाहे वो कामिल सना हो या उससे पहले क्या नाम है जालिनूस हो। फिर उसके बाद में जालिनूस के बाद एक बहुत बड़ा नाम आता है जिसका नाम है अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी, जो रे में पैदा हुए थे, और जिनका सबसे बड़ा कारनामा अल-हावी फित्तिब। अल-हावी फित्तिब वो काम है कि और इसी वजह से इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन कहा जाता है। इन्होंने इससे पहले अपने मुताखिरीन के सारे अतिब्बा पर, इवन जालिनूस को भी इन्होंने नहीं बख्शा, उन पर भी कमेंट्स किया है। इन्हें जालिनूसुल अरब कहा जाता है, यानी इतना बड़ा इनका दर्जा है कि इनकी 23 जिल्द की किताब अल-हावी फित्तिब 23 जिल्द पे है। और इन्होंने हर किताब में अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग अमराज का, अलग अलग आर्गन का जिक्र किया है। ये इतनी बड़ी किताब है कि यूरोप ने इसको तकरीबन 18 सेंचुरी तक अपने यहाँ दाखिले निसाब रखा। और
बल्कि एक मर्ज के बारे में जालिनूस राजी ने के हवाले से लिखी हुई है कि राजी ने लिखा और जकरिया जालिनूस के बारे में कमेंट्स किया है राजी ने कि राजी ने कहा कि मैं फला बाउल यानी कारूरा यानी यूरिन में एक खास किस्म की तब्दीली देखी, वो तब्दीली मुझे पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 ही मरीज मिले। ये जालिनूस का स्टेटमेंट है। जकरिया राजी लिखते हैं कि मैंने उस खास किस्म की तब्दीली के तकरीबन सैकड़ों मरीज देखे हैं, सैकड़ों मरीज देखे हैं। तो मतलब देख लीजिए कि कितना बड़ा तजर्बाती मशाहदे बेस्ड फिजिशियन था ये जो है जकरिया राजी। और जकरिया राजी की किताबुल कुल्लिया दूसरी जो किताबें हैं वो मशहूर किताबुल मंसूरी है जो कुल्लियात पर है, और उसकी एक बहुत अच्छी किताब है, आप सब लोगों को पढ़ना चाहिए। उस किताब के नाम है किताबुल मुर्शिद, उसको इंग्लिश में गाइड कहते, द गाइड एक किताब है उनकी, किताबुल मुर्शिद। वो एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने के बाद मुख्तसर किताब है, लेकिन अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो उससे आप डायग्नोसिस भी बहुत आसानी बना सकते हैं, ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, उसूल इलाज भी बना सकते हैं, उसूल तशखीस, उसूल इलाज और ट्रीटमेंट भी बहुत आसानी कर सकते हैं। मतलब बहुत मुख्तसर और बहुत जामे किताब है। उसके बाद में जो बहुत बड़ा नाम है वो शेख रईस अबू अली अब्दुल्ला इब्न सीना का है, जिनकी किताब जो है अल कानून फी तिब है। लेकिन कानून फी तिब से बड़ा काम इनका जो है वो अल अदवियतुल क़ल्बिया है। चुनांचे अब्दुल लतीफ़ फ़लसफ़ी ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर अल अदवियतुल क़ल्बिया शेख ने ना लिखा होता तो मैं कहता कि इसने कुछ नहीं किया, लेकिन अल अदवियतुल क़ल्बिया देखने के बाद मुझे ये लगा कि इसने वो काम कर दिया है कि जो आने वाली नस्लों के लिए तिब, खासतौर पर यूनानी तिब दूसरों के लिए बहुत बड़ा रिसोर्स रहेगा, क्योंकि इसने नफ्सियाती अमराज का ताल्लुक कल्ब से जोड़ा है। और तकरीबन 64 अदवियात का इन्होंने अल अदवियतुल क़ल्बिया में जिक्र किया है। ना सिर्फ उनके कल्ब के आराज बयान किए हैं, बल्कि अलामात के बेस पर उनका उसूल इलाज और ट्रीटमेंट भी जिक्र किया है। बहुत अच्छी किताब है, इसको पढ़ना चाहिए। अल कानून फी तिब की सिर्फ बस इतनी खूबी है कि ये किताब एक मुनज़्ज़म अंदाज में है और हर चीज़ को एक ऑर्गेनाइज उसमें बयान किया है। अदरवाइज इससे बेहतर किताबें काबिल-उस-समा हैं, इससे बेहतर किताबें ज़ख़ीरा ख़वारिज़-शाही है। ज़ख़ीरा ख़वारिज़-शाही पर्शियन में लिखी गई थी, इस्माइल जुजानी ने लिखा था। बहुत मशहूर हिस्टोरियन जॉर्ज सॉर्टन ने इसके बारे में लिखा है कि ज़ख़ीरा ख़वारिज़-शाही ऐसी किताब है कि अगर कानून से बेहतर नहीं तो कानून से कम भी नहीं है। वो किताब आपको पढ़ना चाहिए। और आज ही से मैं आप लोगों से कहूँगा कि आज ही से आप लोग बड़ी बड़ी किताबों का से रब्त पैदा करें और तिब के जो असरार और रमूज़ हैं उन्हें समझने की कोशिश करें। और चूँकि वक्त बहुत मुख्तसर है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता वक्त की किल्लत की वजह से, क्योंकि दूसरे स्कॉलर होंगे जो अपनी क्यू में होंगे और अपने उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। और माजरत के साथ कि मैंने स्लाइड नहीं बनाया, लेकिन ये है कि कभी इस ताल्लुक से लिटरेरी रिसर्च के ताल्लुक से कभी भी किताबों के हवाले से आप मुझसे किसी भी तरह का किसी भी फन पे आप राब्ता कायम कर सकते हैं और कोई भी किसी भी राइटर की किताब। लेकिन एक बात मैं ज़रूर आज चलते चलते ये कहूँगा कि आप लोग जो है अरबी के जो तारीफ़ात हैं उनको अरबी में याद कीजिए, अरकान का अरबी में याद कीजिए, अखलाक का अरबी में याद कीजिए, क़वा का अरबी में याद कीजिए। आप इसलिए कि आपके काउंटर पार्ट आयुर्वेदा है, वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई उनका फिजिशियन या कोई ऐसा स्कॉलर ना हो जिसे उसका शलोक ना याद हो। भले मॉडर्न मेडिसिन में वो बहुत अच्छी मालूमात नहीं रखता, बहुत तबहुर नहीं रखता, बहुत ज़्यादा उसको फ़हम फरासत नहीं है, लेकिन उनको शलोक ज़रूर याद है। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप सब लोग जो है न्यू कमर हो, तिब का फ्यूचर आप पर है और आपकी वजह से तिब का मुस्तक़बिल है। तिब को एक नई निस्समत मिलेगी रिसर्च और तहकीक में, इलाज और मुआलजा में। और तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप जो है उनकी तारीफ़ात को अरबी में याद करें, अभी याद कर लेंगे
تو ہمیشہ آپ کو مستحضر رہے گا، بعد میں کام آئے گا. اور میں آخر میں ایک بار شکر گزار ہوں ڈاکٹر تنویر صاحب کا کہ انہوں نے موقع دیا کچھ کہنے سننے کے لیے. اور بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا کہ آپ نے ہماری باتیں سنی. اب سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا، میں اس کے لیے بہرحال السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. وہ اس لیے کہ بہت شارٹ نوٹس پہ آپ نے اتنی جامع بات ہم لوگ کے سامنے رکھی، اور یہ بہتر اس لیے بھی ہے کہ نہ کہ صرف یہ فریشر بچے یہاں جڑے ہوئے ہیں اس پروگرام میں، جو ہمارا نیا بیچ آیا ہے ایم ڈی کا وہ بھی جڑا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ان لوگوں نے بھی اس کو محسوس کیا. جو بات میں نے کہی تھی کہ جو لنگوسٹک اپروچ ہے، ریفرنس، اوریجنل ریفرنس والا جو آپ کی ایکسپرٹیز ہے، ان کے کام آیا ہوگا. میں ان سے پھر درخواست کروں گا کہ آپ اس بات کو لکھیں. انشاءاللہ جب ریسرچ کے پہلو سے پروگرام ہوگا تو سر اس میں لائیو ہوں گے. پھر اس سے جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے ان کو کس طرح اس تک رسائی ہو سکے. ضروری نہیں ہے کہ آپ جانتے ہوں تو آپ جلدی کھوج بھی پائیں، لیکن ایک شخص جو ایسا ملے ان کا خود کا ایکسپرٹائز ہو تو بہت آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے ساری چیزیں. بہت ایک دن پہلے ہم نے آپ کو وضو کیا تھا. یہ میرے لیے بڑی بات ہے کہ آپ اس کو قبول کیا آپ نے، اور بہت جلدی سے ہی آپ نے ایک بہتر جو پریزنٹیشن تھا بچوں کے لیے، ہسٹوریکل اسپیکٹ وہاں سے جو ابھی آپ کی میسوپوٹامیل سبھیتا ہے وہاں سے ایفریٹس اینڈ دجلہ انفرات کے آس پاس سے لے کے پھر یہاں آج کے دور حاضر تک کی باتیں آپ نے رکھی. خاص کر جو عربک میڈیسن کا دور رہا ہے جس میں زکریا رازی، پرشین وغیرہ، ان کا حوالہ دیتے ہوئے آپ نے جالینوس کے حوالے سے جو باتیں کہیں وہ بہت جازب باتیں رہیں. میرے لیے خود بہت فائدہ مند ہے. سر کچھ سوالات ہیں جس کے میرے من میں بھی آ رہے تھے، کچھ بچوں میں سوالات آ رہے تھے. میں چاہ رہا تھا کہ اگر وقت ہے تو میں پوچھوں آپ سے. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جنرلی میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کو ایک من میں رہتا ہے کہ وائی شوڈ آئی، مطلب کہ ہم لوگ کو ہسٹری کیوں پڑھیں. تو میں اس سے کلیریفیکیشن چاہوں گا کہ میڈیکل ہسٹری پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، خاص کے یونانی میڈیسن میں پڑھنے کا اس کا کیا فائدہ ہے؟ سر اصل میں اس کا سب سے بڑا فائدہ خاص طور یونانی کے لیے اس لیے ہوگا کہ جو ہمارے علمی سرمایہ ہیں وہ زیادہ تر قدیم زمانے کے ہیں، اور ماڈرن اس وقت کا جو سائنس ہے یا جو ہمارے جو منسٹری ہے، منسٹری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس مرض کا علاج اس سے پہلے کیا تھا، یا اس کا طریقہ علاج کیا تھا، یا ان کے اصول تشخیص کیا تھے. تو ہم جب تک وہ قدیم سرمائے کو کھنگالیں گے نہیں تب تک ہم ان کا جو اصول علاج ہے، اصول تشخیص ہے، یا ان کے اپروچز کو نہیں سمجھ سکتے. میں اس کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، بس اسی میں میرے خیال میں شاید بات مکمل ہو جائے گی. کہ ابن رشد کی کتاب ہے کتاب الکلیات، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں لکھا ہوا ہے پیج نمبر تقریباً 102 میں کہ چونکہ انسانی مزاج جو ہے وہ قلب کے تابع ہے، اور قلب کا مزاج اخلاق پر بنیاد کرتا ہے. اخلاق بنتے ہیں لیور سے، اور لیور کا مزاج جو ہوگا وہی اخلاق بنائے گا. لیکن اگر کسی وجہ سے لیور کا مزاج بدل کر کے ایک سوئے مزاج لے لے، جب سوئے مزاج ہوگا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ سوئے مزاج پورے باڈی کا مزاج ہو جائے گا، اور اس کی وجہ اور اس سوئے مزاج سے پورے باڈی کا مزاج گورن کرے گا. اب آپ آ جائیے ماڈرن جو ہائپر تھائرائڈزم کے بارے میں. ہائپر تھائرائڈزم جس کو گریوس ڈیزیز بھی کہتے ہیں. گریوس ڈیزیز کیا ہے بھائی؟ تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون ہائپوتھیلمس سے ریلیز ہوتا ہے اینٹیریئر پیٹیوٹری گلینڈ سے، چونکہ جو وہ کمانڈ دیتا ہے ہائپوتھیلمس اینٹیریئر پیٹیوٹری گلینڈ سے، پھر وہ ہوتے ہوئے وہ تھائرائڈ گلینڈ پہ آتا ہے. تھائرائڈ گلینڈ پہ اپنے پارٹیکولر ریسپٹر کے ساتھ بائنڈ کرتا ہے. بائنڈ کرنے کے بعد تقریباً 1 آور تک وہ کام کرتا ہے، اور کام کرنے کے بعد T3 T4 جنریٹ ہوتے ہیں، وہ مطلب جو ہے ہارمون پیدا ہوتے ہیں. اب یہ دیکھ لیجئے اطباء نے کیا کہا تھا کہ لیور کا مزاج جو بدل جائے اس کے مزاج کے تابع انسانی مزاج ہو جاتا ہے. اب یہاں دیکھیے، یہاں جو ہے جب گریوس ڈیزیز ہو جاتا ہے یا کوئی ٹیومر ہو جاتا ہے تو ٹیومر کیا کرتا ہے، جو TSH نارملی ریسپٹر کے ساتھ بائنڈ کر رہا تھا اس TSH کو بائنڈ نہ ہی کرنے دیتا، وہ جو ہے ایکوائرڈ مزاج ہے وہ اس کے ساتھ بائنڈ کر لیتا ہے، اور تقریباً 12 آورس تک کام کرتا رہتا ہے، اور جس کے نتیجے میں ڈائریا، ویٹ لاس،
और जो भी हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स हैं वो मिलते हैं। ये बात हमारे तबीबों ने मतलब है बहुत पहले जैसे इग्नेटुस ने किताब अल-कुलियात में लिख दी है, लेकिन अगर हम वो किताब नहीं पढ़ते, अगर वो नहीं देखते, तो हमें कहाँ से पता चलता कि हमारे यहाँ बहुत पहले से था, जो आज हाइपरथायराइडिज्म के बारे में कही जाती है। हाइपरथायराइडिज्म क्या है? एक एक्वायर्ड मिजाज है। क्यों? एक ट्यूमर की वजह से। हमारे तबीब ने भी कहा कि जब किसी वजह से वहां सुए मिजाज लाहिक होगा, तो वो जो है वो सुए मिजाज पूरे जिस्म का मिजाज बनेगा। ऐसे एक दूसरी जगह पे पेज नंबर 40 पे लिखा हुआ है कि अगर किसी वजह से जो ग़िज़ाई मवाद का इस्तेहाला ना हो, जमा ना हो सके, क्या नाम है, जिस्म उसका इस्तेमाल ना कर सके, तो क्या होता है कि फिर वो बारिद मिजाज की तरफ चले जाते हैं। और बारिद मिजाज जो है ये मौत की पहचान है। अब आप देख लीजिए, इसको मॉडर्न से कैलकुलेट कीजिए। जो ग्लूकोज एनर्जी हम लेते हैं वो एनर्जी क्या होता है, चाहे अमीनो एसिड के फॉर्म में लेते हैं, सुक्रोज फ्रक्टोज के फॉर्म में हम लेते हैं, ये क्या होता है, लीवर में जाके ग्लाइकोजन के फॉर्म में जमा होता है, मसिल में जमा होता है, और जो कुछ एनर्जी सर्कुलेशन में इस्तेमाल हो जाता है, जो बढ़ता है वो जमा हो जाता है। लेकिन अगर हम फिजिकल मूवमेंट नहीं करेंगे तो एक्सेस एनर्जी इस्तेमाल नहीं होगी, और जब इस्तेमाल नहीं होगी तो क्या होगा कि वो सर्कुलेशन में रन करने लगेगी। जब रन करने लगेगी तो 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जब थ्रेशोल्ड लेवल आपका बढ़ जाएगा तो वो उसमें जाहिर होगा यूरिन में। तो हम कहेंगे कि यूरिन में शुगर आने लगा। तो ये सब हमारी किताबों से मिलता है। इसी तरह से बहुत सारे, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको अर्ज करूं, जैसे अभी हमने बताया कि लॉस ऑफ फंक्शन है। लॉस ऑफ फंक्शन किताब अल-अज़ाइल आलिमा अगर हम नहीं पढ़ते, तारीख अगर हम नहीं देखते, उनकी किताबों पर नजर नहीं होती, तो हमें कैसे पता चलता कि ये विल्को ने बताया था या जालिनूस ने बताया है। हेलो हेलो जी सर, आवाज आ रही सर। हाँ, एक और दूसरी किताब सुन लीजिए। मैक्स एक किताब है उनकी अल-हुनैन बिन इसहाक की। ये किताब ऑप्थेल्मोलॉजी की दुनिया की पहली किताब है। किताब अल-अश्र मकालात फिल इल्म। इस किताब का नाम है किताब अल-अश्र, यानी अश्र मतलब 10 मकालात फिल इल्म। ये हुनैन बिन इसहाक की किताब है। ये ऑप्थेल्मोलॉजी की दुनिया की सबसे पहली किताब है। और इस किताब को एक पादरी, अफ्रीकन पादरी ने अपने चुरा करके अपने नाम से ट्रांसलेट करके पूरी दुनिया में उस किताब का राइटर बना हुआ था। इत्तेफाक से मैक्स मेयरहॉफ एक बहुत मशहूर प्रोफेसर गुजरे हैं जो जर्मनी के थे, बाद में वो मिस्र आ गए थे, और मिस्र में उनके अंडर एक लड़का पीएचडी कर रहा था। वो लड़का चूंकि अरबी जुबान पर कमांड रखता था, तो इत्तेफाक से वो मैन्युस्क्रिप्ट मिस्र की किसी लाइब्रेरी में उसको मिली, और फिर वो लेकर पढ़ने लगा। पढ़ने के बाद फिर लाया और कहा कि सर ये जो फला पादरी की किताब है, किताब फिल क्या कहते हैं, किताब अल-अश्र फिल अल-अश्र, किताब अल-अश्र मकालात फिल इल्म, यानी चैप्टर्स ऑन 10 चैप्टर्स ऑन आई डिजीजेस। तो जब लाया तो दोनों का मैटर सेम था। तो मैक्स मेयरहॉफ ने भी पढ़ा, मुवाज़ना किया। मैक्स मेयरहॉफ एक जर्मनी के बहुत मशहूर प्रोफेसर थे, उन्हें अरबी भी आती थी। उन्होंने जब देखा तो उसके बाद उन्होंने कमेंट्स लिखा और पूरी दुनिया में शोर किया कि फला पादरी ने इस किताब को चोरी करके अपने नाम से मौसूम कर लिया है। तो ये तो रहा आपके असासे, आपके जो ट्रेजर्स हैं उनको महफूज करने का जरिया। दूसरा कि बहुत सारे अमराज ऐसे हैं जिनका इलाज, जिनका उसूल इलाज हमारी उन्हीं किताबों में है। इसलिए अगर हम तारीख नहीं पढ़ेंगे और तारीख तक अगर हमारी नज़र नहीं होगी तो हम जो है अपनी क्या नाम है कमियों को भी दूर नहीं कर पाएंगे, और जो हमारे मुस्बत एडवांटेजेस हैं उनको दुनिया के सामने जो हमारी वो है हम दुनिया के सामने पेश नहीं कर सकते। सर शुक्रिया बहुत बहुत। बच्चों के बहुत सारे प्रेज आ रहे हैं कि माशाल्लाह पहला लेक्चर हमने अब तक की सुना जिसमें इतने सारे बुक के हवाले आए। और इसी हवाले से एक सवाल ये बनता है, क्योंकि आपने 2 चैप्टर कवर किया है, एक तो आपने हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन और दूसरे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनानी मेडिसिन। इस हवाले से
मेरा एक छोटा सा सवाल था कि कौन सी बुक ये बच्चे फर्स्ट ईयर में कवर करें ताकि इनका बेसिक क्लियर हो? इसके लिए सबसे बेहतर किताब जो है, अगर आज ही से बच्चे जैसे कमालुद्दीन हुसैन हमदानी की किताब उसूल तिब बेसिकली वो एक किताब नहीं, वो पूरा एक मजमुआ है। तो उसके लिए सबसे बेहतर ये हुआ कि अल्लामा कबीरुद्दीन की लिखी हुई किताब इफादे कबीर मुफस्सल आसान जुबान में है, उसको देखें। और किताबुल कुल्लियात कानून जो अल्लामा कबीरुद्दीन साहब की, वो देखें। और कुल्लियात नफीसी थोड़ी मुश्किल पड़ेगी, उसको छोड़ दें। मेरे ख्याल में इफादे कबीर मुफस्सल बहुत जामे और बहुत उम्दा किताब है और उसको इन्हें पढ़ना चाहिए। और उसके अलावा कुल्लियात कानून देखना चाहिए जो अल्लामा कबीरुद्दीन साहब की है। उन्होंने उसका अरबी भी और उर्दू भी दोनों एक साथ जमा किया है। अरबी फायदा यह होगा कि वो अरबी उसका जो है उसके अरबी में तारीफ याद कर रख लेंगे और जो उसका ओरिजिनल वो टेक्स्ट जो है उनसे बहरावर होंगे। और कभी कभार किताबुल मुर्शिद भी इन्हें देखना चाहिए, अगर इसकी हर मुश्किल ज़बान भी नहीं है और बहुत जामे और बहुत उम्दा किताब है, वो बहुत ही अच्छी किताब है। सर एक आखिरी सवाल आना चाहता है कि ये बात जरूर है कि जब हम अपनी किताबों का और अपने हिस्ट्री का जिक्र कर रहे होते हैं, सर जुड़े हुए हैं? जी सर जी बताइए। तो हिस्ट्री और किताबों का जिक्र कर रहे होते उस वक्त तो अल कानून और जितनी भी किताबें मुर्शिद और अल-हावी सारी किताबों का जिक्र हम करते हैं, हवाला भी देते हैं। क्या वजह है कि फर्स्ट ईयर के बच्चों को इन किताबों को हम देखने भी नहीं देते? आपका क्या है उसमें? देखिए असल में देखिए सर तमीर भाई, आप भी यहीं से गए, हम भी गए हैं जब हम अलीगढ़ में पढ़ते थे। तो चूंकि वजह क्या थी, उस जमाने में उतना वो नहीं था और आज थोड़ी बेदारी आई है और खासतौर जब से NIM बना है तब से ओरिजिनल रिसोर्स बुक की तरफ लोग जाने लगे हैं और बहुत सारे अमराज का इलाज भी सामने आया है। नॉन हीलिंग अल्सर यानी ज़ियाबेतस यानी और डायबिटीज में भी बहुत बड़ा रोल अपना निकल के आया है, चूंकि हम ओरिजिनल तक जाने लगे हैं। वजह क्या थी कि पढ़ने पढ़ाने का जितना ज़्यादा माहौल डेवलप होगा उतना ही ज़्यादा हम जो नए तलबा होंगे उनसे जो है उनको हम खुद ही मुस्तफीद होंगे और उन तक उन्हें पहुंचाने की एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे किताबुल मुख्तारात की तब बहुत आसान जुबान है और मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर का तलबा या सेकंड ईयर का तलबा उससे इस्तेफादा कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं और जुबान भी आसान है, उनकी अंदाज़ बयान भी उम्दा है, गुफ्तगू भी बहुत जामे है और अप्रोच बहुत अच्छा है। तो आप इसमें तो खैर इस बहस में हम ना पढ़ेंगे जो है अब तलबा इस्तेफादा कर रहे हैं, पहले जैसे हम लोगों ने कभी देखा नहीं, सोचा भी नहीं, हम पढ़े थे और अब चूंकि पढ़ने लगे तो हमें लगता है कि हम ये तो चीज़ जो अब पढ़ रहे हैं ये हमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में ही पढ़ लेना चाहिए था, शायद वो आज हमें काम आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ज्यादा देर तक थका दिया आपको, अरे नहीं, बहुत जल्द आपसे मिलेंगे और इसको कंटिन्यूएशन प्रोसेस में रखेंगे। बहुत शुक्रिया।